पंजाब विधानसभा के बजट सेशन का आज तीसरा दिन रहा, जहां कई अहम मुद्दे स्पीकर के सामने रखे गए। मुख्यमंत्री मान ने आज सदन में बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों की अनदेखी की है। मान ने कहा कि हमारी सरकार किसानों तक नहरों का पानी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है और 1 अप्रैल से किसानों को खेतों में नहरों का पानी पहुंचा दिया जाएगा। मान ने बताया कि युद्ध स्तर पर इसके लिए नहरों की सफाई का काम जारी है। नहरी पानी की निगरानी पुलिस की तरफ से की जाएगी। इस वक्त जंगी पद्धर ते ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 29 30 31 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਹ 10 ਇੰਚ ਦੇ ਮੋਗੇ ਨੂੰ 20 ਇੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 2 ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰ। ਉੱਥੇ 2 ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤਲਾਬ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਕੇ, ਖਤਮ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬੀਜੀਏ ਐਤਕੀ? ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਰਚਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह आज पंजाब विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। उनके साथ मूसेवाला की माता चरण कौर भी मौजूद रही। बलकौर सिंह ने अपने बेटे के कातिलों को ना पकड़ पाने के लिए सरकार को घेरा। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक भी उनके समर्थन में आए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर हैं। धरने पर बैठे मूसेवाला के माता पिता को मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल मिलने के लिए पहुंचे। कुलदीप सिंह धालीवाल ने बलकौर सिंह को भरोसा दिया है कि 20 तारीख के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान उनको जरूर मिलेंगे, और जिसके बाद बलकौर सिंह ने धरना खत्म करने का फैसला लिया। पहली बार है डी छत्ती बल कार्रवाई करनी, जेल वाले फड़ के अंदर देना। देखो जिन्ना उन्होंने क्राइम होंगे वो तो भैन जी कोर्टां ने करना जो करना। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਿਪਟ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋ, 29 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 2 ਬੰਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, 29 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ 5 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਲਾਭ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਦਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਕੱਲਾ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने अमृतपाल के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। वीरेश शांडिल्य ने कहा कि अमृतपाल एक खतरनाक आतंकी है जो कि देश के लिए खतरा है। बड़ा बयान देते हुए वीरेश शांडिल्य ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में दहशत फैलाने वाले अमृतपाल सिंह को सिख भाईचारे में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
100% करें जी, आतंकवादी को आतंकवादी ही कहा जाएगा। एंटी टेररिस्ट इंडिया का जो स्टैंड वीरेश संडिला का कल था वो आज भी है। और मैं तो ये कहूँगा छज तो बोले छलनी भी बोले, जिसमें सोच छेद। जो पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, जो थानों पर कब्जा कर रहे हैं, जो पंजाब में गन कल्चर कर रहे हैं, जो पंजाब में डीजीपी को धमकियां दे रहे हैं, डीजीपी को चैलेंज कर रहे हैं अमृतपाल, है क्या चीज ये आतंकवादियों से भी मैं तो कहूँगा ऐसे व्यक्ति का जिंदा रहना देश के लिए खतरनाक है, पंजाब के लिए खतरनाक है। लेकिन पंजाब में इसे भिंडरावाला के समान माना जा रहा है। देखिए जी, जरनैल सिंह भिंडरावाला ने क्या किया? जरनैल सिंह भिंडरावाला ने दरबार साहब की आड़ के अंदर जो है भारतीय सेना के ऊपर अटैक किया, 90 जवान शहीद कर दिए। भारतीय सेना के 90 जवान मौत के घाट उतारकर शहीद कर दिए। और अब इसने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज आपको बात कहूंगा, जो बड़ी रात में चिंतन कर रहा था जिसके ऊपर, इसने गुरु ग्रंथ साहब जैसे किसी शादी ब्याह में किसी पैलेस में भी गुरु ग्रंथ साहब को जाने नहीं देते, और इसने गुरु ग्रंथ साहब उठा के कितनी प्लानिंग की, कितनी डीप रूटेड प्लानिंग की, पाकिस्तान से मिलके, आतंकवादियों से मिलके इसने वहां जाके भीड़ में सबने जूते पाए हुए थे आसपास, जबकि जब ग्रंथ साहब कहीं जाया जाता है उसके आगे पानी गिरा जाता है, सफाई की जाती है, फूल गिरे जाते हैं, लेकिन इसने प्लानिंग के तहत गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में थाने के ऊपर कब्जा किया और पुलिस वालों को इंजर्ड किया। इसको सिख आतंकवादी तो है ही यही, इसको सिख कम्युनिटी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अकाल तख्त को इसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डालने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा देने वालों को पीएम मोदी जेल में डाल दें और देश लूटने वालों का साथ दें। उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि वो इस बार होली वाले दिन देश के लिए पूजा प्रार्थना करेंगे और साथ ही देशवासियों से भी अपील करेंगे कि देश की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ठीक नहीं कर रहे तो होली मनाने के बाद समय निकाल कर देश के लिए भगवान की पूजा और ध्यान करें। देश भर के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। यहां मजबूरीवश गरीब अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी स्कूलों की काया पलट दी और गरीबों के बच्चों को भी अमीरों के बच्चों जैसी अच्छी शिक्षा मिलने लगी। वो शख्स है मनीष सिसोदिया। देश भर में सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। यहां गरीब मजबूरीवश अपना इलाज करवाने जाते हैं। आजादी के 75 साल बाद एक ऐसा शख्स आया जिसने सरकारी अस्पतालों की दशा बदल दी। गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना के अच्छा और फ्री इलाज हर घर तक पहुंचाया। पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का एक नया मॉडल दिया। वो शख्स है सत्येंद्र जैन। और दूसरी ओर एक शख्स है जिसने भारत की जनता का खून पसीने से कमाया अरबों खरबों रुपया लूट लिया, बैंकों का और LIC का पैसा डुबो दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे देशभक्तों पे झूठे केस थोप के उनको जेल में डाल दिया और देश को लूटने वाले उस शख्स को गले लगा लिया। आज मैं बेहद चिंतित हूं। मनीष और सत्येंद्र की गिरफ्तारी को लेकर नहीं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बहुत बहादुर हैं, देश के लिए जान भी दे सकते हैं। जेल की कोठरी उनके बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाएगी। मैं चिंतित हूं आज देश की परिस्थिति को लेकर। जिस देश के प्रधानमंत्री लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज देने वालों को तो जेल में डाल दें और देश को लूटने वालों का साथ दें, उस देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं बचता। मैंने तय किया है कि मैं इस बार होली वाले दिन पूरा दिन देश के लिए ध्यान करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पूजा करूंगा। हरियाणा की जींद में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। यहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर मस्जिद में होली मनाई। उनका कहना है कि फूलों की होली मनाकर भाईचारे का पैगाम दिया गया। ये कार्यक्रम जींद में लाल किले वाली मस्जिद के अंदर किया गया। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि धार्मिक भेदभाव मिलकर दूर करेंगे। कहा कि भविष्य में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हरियाणा के सोनीपत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया गया। अंबाला STF की टीम ने बोनू उर्फ छोटू नाम के शूटर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे CIA के हवाले कर दिया गया।
ये एक मोनू उर्फ छोटा, जो कि गोहाना में गांव बिंदल वहां का रहने वाला है, और ये बेसिकली लॉरेंस गैंग से संबंध रखता है। काफी लंबे समय से ये लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी हमारे पास इनपुट्स थी कि ये सोनीपत में ही वहां पर लोकल अपने आसपास ही कई गांवों में फरारी काट रहा था। ये काफी समय से फरार था। पिछले साल एक मुकदमा हुआ था महेश नगर थाने में, जो मोहित उर्फ जल्ला, जो कि भुप्पी राणा गैंग का लीड सदस्य है, उसका मर्डर किया गया था जनवरी लास्ट ईयर, जिसमें एफआईआर नंबर 54 थाना महेश नगर दर्ज हुई थी। उसी में जितने भी एक्यूज अरेस्ट हुए थे, उनकी आगे डिस्क्लोजर में ये पाया गया था कि जो ये मोनू उर्फ छोटा है, ये भी उस वारदात में संलिप्त था। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए इन दिनों एक्शन में है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर काला राणा पर एनआईए की तलवार लटकी हुई है। एनआईए ने यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के घर पर छापा मारा। लोकल पुलिस के साथ मिलकर काला राणा के घर में दबिश दी। बताया जा रहा है कि एनआईए ने काला राणा के परिवार की संपत्ति भी सीज की है। रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ है। इसके चलते एक व्यक्ति की मौत भी हो गई और करीब 6 लोग जख्मी हो गए। इलाज के लिए घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे बंद हो गया है। दोनों तरफ की ओर से सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। हालांकि अभी भी रुक रुक कर लैंडस्लाइड जारी है।